Good morning, dear students. Today we are here with our social science topic, Chapter 4 National Movements in India, Part 5. In Part 4, we have discussed about the Khilafat movement, the non cooperation movement, and constructive and negative aspects we have seen, and many other programs of non cooperation movement. With that, we'll continue with the same topic, that is programs of non-cooperation movement. Right. So we all know that this chapter is all about movements which held in India for independence. Right. That what are the steps we have taken. Okay, or what ever the steps we have taken for getting independence, that is against the Britishers. Okay, we have seen the Swadeshi movements and lots of. Okay, so let's move on. So today's lecture we are going to study programs for non-cooperation movement. Whichever left out topics are there, we'll continue with that. Then comes the Chora Chori incident and withdrawal of the movement. Withdrawal of the movement here means the non-cooperation movement was withdrawal. Okay, so how it was withdrawal, that is because of the incidents of Chora Chori movement. We'll discuss it. Then comes the importance of non-cooperation and its effect. Then Swaraj Party. So let's start it. Programs for non-cooperation movement. Right, we have discussed many of the programs in part 4 itself, and the remaining we are going to discuss here. More than 1 crore rupees was collected in the Tilak Fund. We have discussed this in last lecture, right? कि तिलक फंड में 1 crore rupees कलेक्टेड हुए थे. ये इसलिए कलेक्ट हुए थे क्योंकि जो हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करने में हमने बॉयकॉट किया था द फॉरेन गुड्स. Okay, so we have boycott the foreign goods as well as the foreign education. So in India it was started, national education was started in India, and that's why for that, to opening the colleges, schools and factories and all such things for Swadeshi movement, we require lots of money, and it was being donated by many people at that time, and बहुत सारे पैसा इकट्ठा किए गए थे. राइट, सो तिलक फंड में उस वक्त अराउंड 1 crore rupees, यू जस्ट इमेजिन, ये हम 1920s और 22 के आसपास की बात कर रहे हैं. 1 crore rupees उस वक्त इकट्ठा हुए थे. On many occasions the Hindu Muslim emerged predominantly, और हमने लास्ट खिलाफत मूवमेंट में देखा कि as Gandhiji took the decisions to support Congress, he requested Congress to support Muslims in this khilafat movement, and because of that there again we able to found the unity between Hindu and Muslims. So कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे occasions आए जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी फिर से इमर्ज हो रही थी. द मोपला रिवोल्ट, ये रिवोल्ट हुआ था मालाबार में, बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पीजेंट्स, डिजर्व्स क्रिटिसिज्म्स, एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी. ये मोपला रिवोल्ट हुआ था मालाबार में, दैट इज बाय हिंदू लैंडलॉर्ड्स, हिंदू के जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वहां पे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार वी कैन से, एंड मुस्लिम पीजेंट्स. राइट, ये दोनों ने क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिशर्स को. राइट, और ब्रिटिश आर्मी ने इनके इस रिवॉल्ट को बहुत ही सप्रेस्ड करने की कोशिश की थी. सप्रेस्ड यानी इस रिवॉल्ट को रोकने के लिए जो भी स्टेप्स ले सकते हैं उन्होंने वो स्टेप्स लिए थे. द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन. गवर्नमेंट ने, क्योंकि जगह जगह पे इंडिया में कहीं हर एक स्टेट्स, हर एक विलेजेस बोलो, हर एक सिटी बोलो, एवरीवेयर सम और द अदर मूवमेंट्स हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड. राइट, सो गवर्नमेंट नाउ हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन. सप्रेशन यानी कैसे भी करके रिवॉल्ट को दबाया जाए. राइट, लोगों को मार के, लोगों को जेल में डाल के, वट एवर स्टेप्स दे कैन एबल टू टेक. अनकंट्रोल लाठीचार्ज, जैसे मैंने कहा कि सप्रेशन के लिए वो क्या कर रहे थे. राइट,
लाठी चार्ज करना, फायरिंग करना, कलेक्टिव अरेस्ट, सबको जेल में डाल देना, इनह्यूमन टॉर्चर, लोगों को बुरी तरीके से जैसे एक ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होना चाहिए वैसा एक टॉर्चरस बिहेवियर, राइट। ये सारी चीजें उन्होंने की फॉर द टू सप्रेस द policies or to suppress such types of movements. So this was their policy. अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर मेड। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए या किए गए, जैसे हमने आगे भी देखा मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, कि कैसे मिंटो और मोर्ले ने दोनों ने मिलकर मुस्लिम्स को एनकरेज किया कि वो हिंदू से अलग हो जाए, वो अपना खुद का एक अलग आइडेंटिटी बनाए, राइट, उन्हें अलग एक वोटिंग राइट मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए। बट इवन दो आफ्टर इंडियंस एफर्ट्स, जितने भी कांग्रेस पार्टीज ने या हिंदूज ने जो एफर्ट्स किए, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को सपोर्ट किया या मुस्लिम्स ने कहीं ना कहीं हिंदूज को सपोर्ट किया, इन दैट मैनर हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी को बार बार तोड़ा गया, बट कहीं ना कहीं वो फिर से एक यूनिटी आ ही जाती थी, राइट। सो वी कैन से कि इट वाज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बाय ब्रिटिशर्स, कि बार बार वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ रहे थे। Now, next comes Chora Chori incidents and withdrawal of the movement. अब क्या हुआ? Now, it's very important to understand that non-cooperation movement was going on in full world, we can say. बहुत जोरों शोरों से ये मूवमेंट चल रहा था। सो ये भी हमें पता है कि इंडिया के हर एक नुक और कर्नल में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। वैसे ही एक चोरा चोरी विलेज है, ये विलेज गोरखपुर में है, राइट, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी विलेज था। यहाँ एक इंसिडेंट हो गया। क्या हुआ? लेट्स रीड आउट। पीपल टुक आउट अ रैली इन द चोरा चोरी विलेज इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एक रैली लेके निकले लोग वहां पे, राइट। अब तो पुलिस ने लोगों को देखा, भीड़ देखी कि एक रैली आ रही है, पुलिस ने ओपन फायर करना शुरू कर दिया लोगों पर। बट व्हेन दे, और जब पुलिस की बुलेट्स कम पड़ गई लोगों को मारने में, राइट, क्योंकि शायद लोग ज्यादा थे, तो फिर लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस पर अटैक किया, फिर पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, और जिसमें 21 पुलिसमैन डाइड। ये इंसिडेंट था चोरा चोरी। सी, हमारे लोग यानी हमारे जो इंडियंस थे या उत्तर प्रदेश के या ये चोरा चोरी विलेज के जो लोग थे, बहुत शांति से एक रैली लेके जा रहे थे। पुलिस ने सामने आके ओपन फायर किया, राइट। जब बुलेट्स कम पड़ गई तो जो बचे कुचे लोग थे वो बहुत गुस्सा थे और उन्होंने गुस्से में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और जिसमें 21 पुलिसमैन डाइड। सी, द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल, but when they ran short of bullets, people attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen died. ये इंसिडेंट था चोरा चोरी इंसिडेंट। अब ये बात गांधी जी को पता चली कि ऐसा कुछ लोगों ने किया है, राइट। फिर गांधी जी का क्या रिएक्शन था, लेट्स सी। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज, सी व्हाट इट्स गिवन, हॉरिबल न्यूज। ये बात जब ये न्यूज, हॉरिबल न्यूज गांधी जी को पता चले तो गांधी जी ने क्या कहा, देखो, आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर by giving the tool of satyagraha in the hands of people who do not understand the value of non-violence. गांधी जी बहुत गुस्सा हुए और गांधी जी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, यानी मैंने सबसे बड़ी एक पहाड़, एक हिमालयन माउंटेन, यानी इतनी बड़ी पहाड़ जितनी गलती कर दी कि मैंने सत्याग्रह जैसा एक वेपन, एक टूल, we cannot say weapon, but एक सत्याग्रह जैसा टूल ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जिनको नॉन वायलेंस का मतलब ही नहीं पता है। तो गांधी जी थॉट कि इट इज माय फॉल्ट कि मैंने गलत लोगों के हाथ में सत्याग्रह जैसी एक चीज थमा दी, राइट, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी जिनको नॉन वायलेंस क्या है वही नहीं पता है। सो वो काफी हद तक नाराज हुए इस इंसिडेंट से, एंड देन ही डिसाइडेड कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया, यानी रोक दिया कि अब ऐसा कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं होगा।
So he suspended the movement immediately. So ये था इंसिडेंट, चोरा चोरी के इंसिडेंट की वजह से there was a withdrawal of the movement, and that movement was non-cooperation movement. Okay. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड इट्स इफेक्ट्स. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने वर्ड्स पे था 1920 टू 22. ये मूवमेंट शुरू हुआ, हम कह सकते हैं रॉलेट एक्ट आया. रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए जब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, राइट, तब जलियांवाला बाग में एक इंसिडेंट हुआ, एक मसक्र हुआ जहां पे जनरल डायर ने सबको मार डाला, राइट. सो उसके बाद वो जो गुस्सा था उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया कि चलो अब हम बिल्कुल भी गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करेंगे, उनके कोई रूल्स और रेगुलेशंस को, उनके कोई पॉलिसीज को कोई भी हम फॉलो नहीं करेंगे, राइट. वो हमने देख लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने वर्ड्स पे कैसे चला, ये भी हमने देखा. फिर चोरा चोरी इंसिडेंट आया, किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉल हुआ, वी हैव सीन एवरीथिंग. बट अब है ये है कि एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहा, प्लस इसके इफेक्ट्स कैसे रहे इंडियंस पे. लेट्स रीड आउट. दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड एम्स, नो डाउट. ये मूवमेंट जो उनके एम्स थे कि शायद अगर गांधी जी ने सोचा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने जो एम्स सोचे थे वहां तक तो वो नहीं पहुंच पाए, वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला. बट इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स managed to generate in people awareness of their right. दोनों एस्पेक्ट्स क्रिएट हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जैसे हमने आगे भी पढ़े थे वैसे यहाँ पे भी नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स क्रिएट हुए. बट लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई अपने हकों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपने राइट्स को लेकर. A negative atmosphere against the government was created. क्या हुआ कि एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था कि गवर्नमेंट बुरी है, ये दिमाग में बैठ गया था हर एक इंडियंस के. ठीक है. सो हर एक के दिमाग में यही था कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कितना कुछ गलत किया है. ये एक आई कैन से के दिमाग में सबके सेट हो चुका था. दे नोज, राइट. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस. अब तक ऐसा था कि कई सालों तक ये लोग बैठे रहे, राइट. ये लोग वो ब्रिटिशर्स इंडियंस पे इनजस्टिस करते रहे और ये लोग सहन करते रहे, राइट. उन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स से के अपोज नहीं गए. बट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने देखा उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया, यानी उसके बाद मूवमेंट्स पे मूवमेंट शुरू हुए, स्ट्रांगली अपोजिशन दिखाई दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो अब ऐसा था कि एक भी इनजस्टिस अगर ब्रिटिशर्स ने किया तो देर आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन in Indians, right? So there was a political awareness among all the classes of India. पहले ऐसा था कि ब्रिटिशर्स क्या पॉलिटिक्स खेल रही है, ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है या क्या कुछ गलत कर रही है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था. वो क्या पॉलिटिक्स खेल रही है वो नहीं समझ में आ रहा था. बट स्लोली एंड स्टेडली ये सारे अवेयरनेस अब लोगों में आ चुके हैं. अब लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गया है कि ब्रिटिशर्स क्या कुछ कर रही है. ठीक है. द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकम स्ट्रॉन्गर. अब लोगों में एक फेथ है, राइट. एक ऐसी वी कैन से कि एक ऐसी फीलिंग्स है कि दे सुन गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंस, राइट. सो अब उनकी ये जो फीलिंग है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रही है. द फियर ऑफ लाठी, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड. जो पहले शायद ये सारी चीज से इंडियंस डरते थे, लाठी से, पनिशमेंट से, जेल में जाने से या वॉट एवर, बट अब ऐसा हो गया है कि अब तो करो या मरो. ये जो एक दिया था मोटो, राइट. सो ये करो और मरो, डू और डाई, गांधी जी ने जो कहा था, अब ये कुछ ऐसा ही हो गया है कि या तो अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए या हम मरने को रेडी हैं. सो एक क्या हो गया कि एक जो डर वाली जो फीलिंग्स थी, इट वाज बीइंग कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम इंडियंस, राइट. The youth and women too came forward to serve their nations, and Congress became an organization of the people. Schools giving national education began. सिर्फ ऐसा नहीं था कि आई कैन से कि मैन ही ऐसे इस नेशनल ये जितने भी मूवमेंट्स है उसमें जुड़ रहे थे. यूथ भी थे, विमेन्स भी थे, आई कैन से बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ऑल एज्ड पीपल
राइट, वर केम फॉरवर्ड टू सर्व देयर नेशन, और ये इसका एक मेन लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में गई। कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। यहाँ तक के नेशनल एजुकेशंस भी शुरू हुए, नेशनल स्कूल्स भी शुरू हुई, इंडियन स्कूल शुरू हुई, राइट। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश। पहले ऐसा था कि इंग्लिश वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, बट देन व्हाट हैपेंड, हिंदी, जैसे आज हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी, राइट। सो हिंदी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। The movement that was limited to cities and towns and intellectuals spread to the people and villages. कुछ ऐसे मूवमेंट एक वक्त था जो शायद किसी सिटीज या किसी टाउन्स में ही होते थे। अब ये हाल है, अब इंटेलेक्चुअल्स इतना बढ़ गया है कि अब वो कोई भी मूवमेंट छोटे से कोई एरिया में भी क्यों ना हुआ हो, ये धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। गेटिंग, ये पूरे कंट्रीज में स्प्रेड होता जा रहा है। फाइन। स्वराज्य पार्टी with the purpose of retaining the national awareness among people, Chittaranjan Das, Munshi and Motilal Nehru formed the Swaraj Party after the withdrawal of non-cooperation movement. So जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बीच में से रोक दिया गया बाय गांधी जी बिकॉज ऑफ दैट चोरा चोरी इंसिडेंट, एक पार्टी शुरू हुई। देन आफ्टर इट्स started because to retain the national awareness among the people, and it was its main purpose. It was being started by Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru, right, और ये पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। Their purpose was to enter the legislature. इनका मेन पर्पस ये था कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में हम अपना एक एंट्री ले ले, राइट, एंड कैसे हम ब्रिटिशर्स की सारी अनजस्ट पॉलिसीज को अपोज करें, क्योंकि वहीं बैठ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाके ही ब्रिटिशर्स की अनजस्ट पॉलिसीज को अपोज किया जा सकता है। अदरवाइज बाहर अगर हम कितने भी रैलीज कर ले, स्ट्राइक्स कर ले, नारा लगा ले कि ये अनजस्ट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकली वहां एंटर होना इट वाज इम्पोर्टेंट। The leaders of the Swaraj Party also adopted the constructive activities. स्वराज पार्टी के लीडर्स ने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी अपनाई गांधी जी की जो थी, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ स्पाइनिंग व्हील, लिकर प्रोहिबिशंस एक्सेट्रा। ये सारे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी स्वराज्य पार्टी ने अडॉप्ट की और उस पर वर्कआउट किया। ठीक है। Swaraj Party contested the election of legislatures held in November 1923, and the candidates of Swaraj Party were elected in the central legislature as well as the provincial legislature and got clear majority. So जो उनका पर्पस था कि कैसे लेजिस्लेचर असेंबली में घुसा जाए, राइट, कैसे उस वहां जाना है, ओके, तो वो एंट्रेंस उनको मिल गया। स्वराज्य पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया लेजिस्लेचर्स का नवंबर 1923 को, और उनके कैंडिडेट्स जो स्वराज्य पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो इलेक्टेड हुए सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में और प्रोविंशियल, दोनों ही लेजिस्लेचर में उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली। It did not get the majority in Bengal. No doubt स्वराज्य पार्टी को बंगाल में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, बट इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग पार्टी, बट एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरह वो वहां उभर के आई। Motilal Nehru was elected into the central legislature as the party leader, and Chittaranjan Das was elected in the Bengal province. So Motilal Nehru को central legislature elect किया गया and एज द पार्टी, और उनको पार्टी लीडर भी माना गया, और चित्तरंजन दास इलेक्ट हुए बंगाल प्रोविजन में। स्वराज पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट एंड प्रपोजल्स एंड रीसेंटेड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्वराज्य पार्टी कहीं ना कहीं डिसअप्रूव्ड हुई, राइट, उन्होंने गवर्नमेंट बजट्स को डिसअप्रूव्ड किया, और ऐसे जितने भी प्रपोजल्स ब्रिटिशर्स ने रखे थे, राइट, उन सारे अनजस्ट पॉलिसीज को भी सामने लाए गए। See, whatever I said about Bhagat Singh, Rajguru and this, these and the both are the different matters, right? But कहीं ना कहीं I can say कि उनका जो एक मकसद था, it was same. जैसे इन लोगों का ये था स्वराज्य पार्टी का कि लेजिस्लेचर असेंबली में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, जो अनजस्ट पॉलिसीज है, राइट, उन्हें कैसे डिसअप्रूव्ड करना, उनके प्रपोजल्स को कैसे गलत साबित करना, राइट, उन्हें वहां जाके अपोज करना, राइट, ये वो चाहते थे। एंड
भगत सिंह और उन लोगों ने जो स्टेप लिया था, राइट, वो भी उन्होंने यही किया था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और उन्होंने इस तरीके से किया था कि वहां कोई हर्ट ना हो, राइट, वहां कोई मरे नहीं, इस जगह पे, ऐसी जगह पे ब्लास्ट किया था। और उनका भी यही एक था कि वो किस हद तक वो दिखाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स को कि हम कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, गेटिंग, कि उन्हें कोई भी किसी भी तरीके से दे वांट इंडिपेंडेंस। इट कंपाइल द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। फिर स्वराज्य पार्टी ने, क्योंकि अब वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आ चुके हैं, उन्होंने लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट के सामने रखी। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ स्वराज्य पार्टी ओनली, गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years अर्लियर। क्योंकि स्वराज्य पार्टी का वर्किंग चल रहा था, सिर्फ स्वराज्य पार्टी का, इसलिए गवर्नमेंट को साइमन कमीशन अपॉइंट करना पड़ा 2 years अर्लियर। ये साइमन कमीशन शायद 2 साल के बाद आने वाला था, बट बिकॉज ऑफ स्वराज्य पार्टी साइमन कमीशन 2 साल पहले आ गया। और इस साइमन कमीशन को भी हमने अपोज किया था, राइट, साइमन गो बैक और ऐसे सारे बहुत सारे नारे लगाए थे। और इसी में इस लाठीचार्ज के वक्त ही लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। The Swarajya Party functioned in a disciplined manner and established high parliamentary practices. स्वराज्य पार्टी बहुत डिसिप्लिन मैनर में फंक्शन कर रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने मतलब एक हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, यानी काफी हद तक वो एक्सपीरियंस्ड हो गए थे कि इस तरीके से वो काम कर रहे थे पार्लियामेंट में। It proved to the British government that Indians can rule constitutionally and democratically. यानी स्वराज पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रूव किया कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियंस भी चाहे तो ऐसा गवर्नमेंट बना सकती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली इसे रूल कर सकती है। द एडुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वाज दस अट्रैक्टेड टू द स्वराज पार्टी। सो ऐसे बहुत सारे एडुकेटेड क्लास जो भी थे वो कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी से काफी हद तक अट्रैक्टेड थे। Yes, I want to add one thing. एक डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी 1923 से पहले 1920 को शुरू हुई थी, एंड इट वाज फाउंडेड इन द बॉम्बे प्रोविंस इन अक्टूबर, वेट, हाँ, 1920 को ये स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, ओके, विद इन द नेशनल कांग्रेस, फाइन। सो उसके बाद आफ्टर तिलक्स डेथ, राइट, ये पार्टी मतलब स्वराज पार्टी वाज कंटिन्यूड बाय दिस हेड्स, ओके। नेशनल अवेयरनेस री इमर्ज्ड इन पीपल, लोगों में फिर से एक नेशनल अवेयरनेस आने लगी। पार्टी प्लेड क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर। पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे एक इंडिपेंडेंस नजदीक लग रही थी लोगों को पार्टी के हार्ड वर्क की वजह से। ऑल दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी। तो ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट थी। बट जून 1925 में चित्तरंजन दास की जब डेथ हुई, उसके बाद ये पार्टी काफी वीक हो गई। Some members began supporting the government while others established a new party named the National Party. इसके कुछ members थे जो वापस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, और इसके कुछ members ने नई पार्टी शुरू कर दी, that was National Party. Thus, the prestige of Swaraj Party reduced. तो धीरे धीरे जो prestige थी, राइट, स्वराज पार्टी की, वो कम होती गई। इन द 1926 इलेक्शन ऑल इट्स मेंबर लॉस्ट टेरिबल एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस। 1926 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सारी मेंबर्स टेरिबली मतलब हार गए, सिर्फ मद्रास प्रोविंस को लेकर। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज्ड द पार्टी स्ट्रांगली। यहाँ तक कि बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भी इस पार्टी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। So this was the end of the chapter, and hope you understood the movements which had been carried during all this time, right, and whatever the effects of such movements we have seen, and because of that movements we can say that we had got the independence after their hard work and all such efforts. Okay, so hope you understand this chapter very well. So enjoy, bye bye, take care all of you.